پہلی سیموئیل کی کتاب اس کا 11واں باب یعنی چیپٹر نمبر 11 پہلی آیت سے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تب امونی ناخس چڑھائی کر کے یبیس جلاد کے مقابل ہیمازن ہوا، اور یبیس کے لوگوں نے ناخس سے کہا، ہم سے عہد و پیما کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب امونی ناخس نے ان کو جواب دیا کہ اس شرط پر میں تم سے عہد کروں گا کہ تم سب کی داہنی آنکھ نکال ڈالی جائے، اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے ذلت کا نشان ٹھہراؤں۔ تب یبیس کے بزرگوں نے اس سے کہا، ہم کو 7 دن کی مہلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجیں، تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے۔ اور وہ قاصد ساؤل کے جبہ میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہہ سنائیں، اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے، اور ساؤل کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا۔ اور ساؤل نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں؟ انہوں نے یبیس کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں۔ جب ساؤل نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس کا غصہ نہایت بھڑکا۔ سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا اور قاصدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا، اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر ساؤل اور سیموئیل کے پیچھے نہ ہو لے، اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور خداوند کا خوف لوگوں پر چھا گیا، اور وہ یکتن ہو کر نکل آئے، اور اس نے ان کو بزک میں گنا۔ سو بنی اسرائیل 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000 تھے۔ اور انہوں نے ان قاصدوں سے جو آئے تھے کہا کہ تم یبیس جلاد کے لوگوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤ گے۔ سو قاصدوں نے جا کر یبیس کے لوگوں کو خبر دی، اور وہ خوش ہوئے۔ تب اہل یبیس نے کہا، کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے، اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا۔ اور دوسری صبح کو ساؤل نے لوگوں کے 3 غول کیے، اور وہ رات کے پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ دن بہت چڑھ گیا، اور جو بچ نکلے سو ایسے تتر بتر ہو گئے کہ 2 آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے۔ اور لوگ سیموئیل سے کہنے لگے، کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں۔ ساؤل نے کہا، آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے۔ تب سیموئیل نے لوگوں سے کہا، آؤ جلجال کو چلیں تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں۔ تب سب لوگ جلجال کو گئے، اور وہیں انہوں نے خداوند کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا۔ یہ 2nd ٹائم اس کی ڈیڈیکیشن ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے وہاں خداوند کے آگے سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے، اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس کو 15 آیتوں کو ہم شارٹ سے پوائنٹس میں ہم دیکھ لیں گے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک مختصر سا چیپٹر ہے، اس کے اندر 2 کریکٹر ہیں، یبیس جلاد اور امونی ناخس۔ یہ 2 کریکٹر اس چیپٹر کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یبیس جلاد جو تھا، چونکہ جب تقسیم ہوئی تھی
कौम बनी इसराइल की, तो यरदन के पार कबीले गए थे 10 और 2.5 कबीले जो थे वो यरदन के इस पार रह गए थे। अब दरमियान के अंदर दरियाए यरदन है और एक साइड पर ज्यादा कबीले हैं और मनस्सी का भी आधा कबीला चूंकि इनके साथ मौजूद था, ये मनस्सी का कबीला भी आधा इनके साथ और ये यबीस के जलाद के इलाके के अंदर मौजूद हैं। ये यबीस जलाद कंपेयर कर लें कि एक ईमानदार है और अमूनी नाखिस जो है ये इब्लीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अमूनी बेसिकली कौन थे? ये लूत की बेटी से नस्ल चली थी, उसको हम अमूनी, और बड़ी बेटी की औलाद को हम मवाबी नस्ल कहते हैं। ये दोनों नस्लें लूत से चल के आ रही थीं। इसका मतलब ये है कि इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन कौम बनी इसराइल के साथ बनता था और ये डीप रिलेशन होने के बायस अमूनी जो थे ये अपने आप को ताकतवर समझते थे। चूंकि बनी इसराइल उस वक्त जब का ये वाक़या है, उस वक्त ये कमजोर पड़ चुकी थी लोगों की या तादाद के ताल्लुक से, क्योंकि 10 कबीले चले गए थे और बाकी लोग एक तरफ रह गए थे। अब इन पर अमूनी नाखिस जो है वो आकर इन्हें घेर लेता है, कब्जे में कर लेता है और ये आप अंदाजा लगा लें कि ये सोए हुए हैं और सोए हुओं पे आके फौज चारों तरफ से घेरा डाल ले तो ये बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन बन जाती है। अब कौम बनी इसराइल रूहानी तौर पर भी डट जा रहे थे और ये तादाद के लिहाज से भी डट, और खुदा को अपना बादशाह भी तस्वुर नहीं थे कर रहे। अब इस सिचुएशन के अंदर जब कौम बनी इसराइल जंगों के अंदर घिरी है, ये मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रही है और इनके ऊपर अमूनी नाखिस ने आकर धावा बोल दिया है। अब ये कौम बनी इसराइल के यबीस के इलाके के अंदर जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं? वो बजाय के इस बात पे फख्र महसूस करते कि मेरा खुदा जोरावर है, वो हमें मिस्र से निकाल के ले आया, उसने समुंदर के 2 हिस्से कर दिए, उसने अमालिकियों को मारा, उसने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने, नाखिस का मतलब है सांप, अमूनी नाखिस मतलब है इसका सांप, यानी कि अपने आप को इब्लीस के हैंड ओवर करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम तेरी खिदमत करेंगे। और है ये इसराइल, आप हालत देखिए इनकी कि इसराइल है और कहता है हम तेरी खिदमत करेंगे, और इब्लीस कभी भी आपसे विदाउट फायदा वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। इब्लीस करता क्या? उसने कहा मैं आपकी दाहिनी आंख निकाल लूंगा। ये कहते हैं बेशक निकाल, लेकिन हम तेरी खिदमत करेंगे। अपने खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया, अपने खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया, खुदा को भूल ही गए और उस वादे को भूल गए कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा बादशाह हूं। अब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है और दाहिनी आंख निकालने का मतलब क्या है? यानी कि मैं नाखिस, अमूनी नाखिस अपने आप को मुखातिब करके कहता है कि तुम आपस में सलाह कर लो और मैं तुम्हारी दाहिनी आंख निकालूंगा। यानी कि जो सिपर और ढाल का इस्तेमाल किया जाता था उसको दाहिनी आंख के साथ कनेक्ट किया जाता था, डिफेंस किया जाता था। अब बेसिकली अमूनी नाखिस कहता है कि मैं जब तुम्हारी दाहिनी आंख निकालूंगा यानी तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे और कभी मैं दोबारा आऊंगा भी तो तुम कभी मेरे साथ जंग नहीं करने पाओगे। आंख से अंधा होना जंग से बेकार हो जाने के बराबर है। आप आज की भी फौजें देखें, वो सारे टेस्ट करते हैं, मेडिकल, नजर का, दिल का, फिटनेस का, आपका एक एक टेस्ट होता है, फिर आप लड़ सकते हो।
अगर फेफड़ियां च थोड़ा जिहा भी इन्फेक्शन आ जाए ना तो कहणगे या तो दुरुस्त कराओ तो या इनू ट्रीटमेंट करा के दुरुस्त होके आवो। अब ये सिचुएशन सारी क्रिएट हुई है। अमूनी है, अमूनियों ने यबीस जलाद के इलाके को यानी कौम बनी इसराइल को घेर लिया है और उन्हें यह भी पता है कि अब इसराइल की मदद के लिए कोई नहीं आएगा। नाखिस इस घमंड के अंदर बैठा हुआ है और उन्हें मौका दे देता है। फॉर एग्जाम्पल साडे मुल्क नूं या साडा मुल्क किसी मुल्क नूं घेरा पा लवे, वो कदी निकलन देगा अपने उस कब्जे दे विचों कि जाके तुसी कासद अपने भेजो दूजे मुल्क ने अपनी मदद मांगो। लेकिन इबलीस के अंदर एक बड़ा घमंड ये है कि वो अपना गरूर कभी नीचे नहीं करता। इसने कहा अपने कासद भेज दो दूसरे इलाके में। इसको यह घमंड था कि कोई बंदा इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। अब हुआ क्या, ये चले जाते हैं साउल के पास, उस एरिया में जहां पर 10 कबीले आबाद हैं, और उस इलाके के अंदर जाकर ये रोते हैं, चिल्लाते हैं। अब जब ये रोते हैं तो जुबा के अंदर साउल क्या कर रहा है, हालांकि खुदा की तरफ से डेडिकेशन है कि ये तुम्हारा बादशाह होगा, बेशक लोगों का चुनाव था, लेकिन खुदा ने फिर भी इनकी हेल्प की। खुदा ने कहा ठीक है यही तुम्हारा बादशाह है। अब बादशाह को यह होना चाहिए कि मैं तो किंग हूं, मुझे अपनी मशहूरी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह क्या कर रहा था बादशाह मुकर्रर होने के बाद, ये अपने बैलों के पीछे पीछे आ रहा था, ये वर्कआउट कर रहा था, ये अपने काम में मसरूफ शख्स। और ये सारे सिनेरियो के अंदर साउल बादशाह होने के बावजूद इसकी जिंदगी के पहले जो इनिशियल ईयर्स जो थे ना, स्टार्टिंग टाइम पीरियड, वो बेइंतहा अहम। इसकी जिंदगी के पहले साल इतने अहम थे कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। इसने किया क्या था, कौम बनी इसराइल फंसी है, उनके जहन में, अमूनी नाखिस के जहन में यह बात है कि इनकी मदद और कहीं से फराहम नहीं होगी। साउल बेशक बादशाह बन गया है, लेकिन वो था तो गधे चराने वाला, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसके बादशाह बनने के बाद भी लोगों ने मुखालफत कर दी थी, उसको मुबारकबाद नहीं थी दी। ये सिनेरियो है, ये बैकग्राउंड है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये हालात हैं। अब इन हालात के अंदर साउल क्या करता है, साउल कहता है कि पहले बैलों की कुर्बानी, पहले कुर्बानी दो, और पूरे बनी इसराइल के लोगों को कहा अगर किसी ने अपने बैल की कुर्बानी ना दी तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। हालात यहां तक आ गए, ये रोने लगे। साउल कहता हुआ क्या है, अमूनी नाखिस ने आकर हमें घेर लिया है और हमारे पास कोई हेल्प, कोई मदद का कोई रास्ता नहीं बचा। आप अंदाजा लगाएं, बंदा मुश्किल में फंसा, ईमानदार भी यही करता है, कंप्रोमाइज कर जाता है। यबीस ईमानदार को रिप्रेजेंट करता है। और आपको मैं एक बात दावे से बताने लगा हूं, इब्लीस की जुर्रत नहीं है कि वो ईमानदार को यूज करे, हो ही नहीं सकता जब तक ईमानदार अपने आप खुद उसको पेश ना करे। इब्लीस की जुर्रत नहीं है कि वो ईमानदार को खुद इस्तेमाल करे, जब तक ईमानदार उसे परमिशन ना दे दे कि हां मैं हुण तैयार हां। यबीस जलाद के लोग, कौम बनी इसराइल, जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले, और अपने आप को कहते हैं हम तेरी खिदमत करेंगे, खुदा का वादा है सारी दुनिया तुम्हारे ताबे कर दूंगा, जो तेरे ऊपर बरकत चाहेगा बरकत दूंगा। खुदा का वादा तो कुछ और है। तो फिर आज का ईमानदार क्या कर रहा है, हम अपने आप को खुद इब्लीस के ताबे कर परमिशन देते हैं उसे, वरना उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि खून से धुले हुए लोगों को वो पकड़ सके। उसमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि जो सलीब पर मरे यीशु को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो मुर्दों में से जी उठा उसे निजात दहिंदा मानते हैं, उसके लोगों को वो टॉर्चर कर सके, जब तक आप खुद परमिशन नहीं करते। यबीस जलाद ने खुद परमिशन की,
हम तेरे पास खुद निकल आएंगे। तो ਅਸੀਂ आप ही ਨੂੰ मौका देने हैं ना। कई दफा हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चारों तरफ से घिर जाते हैं और रास्ता कोई नहीं बचने का निकलता। इनके साथ भी यही है, इनके पास भी रास्ता नहीं है निकलने का, बचने का कोई राह नहीं है, लेकिन खुदा देख रहा है। जब तक आप परमिशन ही ना करेंगे उस वक्त तक इब्लीस आपको नहीं पकड़ेगा और ना ही आपको छेड़ेगा। अगर उस वक्त खुदा पर ये भरोसा कर लेते और नाखिस से कहते जा तेरे से जो होता है कर ले, हम जिंदा खुदा को मानते हैं, वो मेरी मदद खुद कर लेगा, तो क्या खुदा उन्हें ना बचाता? खुदा बचाता, खुदा उन्हें निकाल लेता इस सिचुएशन के अंदर से। लेकिन उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया। हम भी बल्कि इन्होंने चाहिए सी उत्थे घुटने टेक लेंदे, दुआ कर दे। इन्होंने या ना दुआ की है, ना प्रस्तिश की है, ना खुदा पर भरोसा किया है। और नाखिस को यानी इब्लीस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मौका दे दिया कि आ साडी दाहनी अख भी कर दे, असी तेरी खिदमत भी करांगे, असी तेरे गुलाम भी हो जाएंगे। तो हम खुद मौका देते हैं कि हमारी, और कलाम कहता है इस जहान के खुदा ने आंखों को क्या किया हुआ है? बंद किया, अंधा किया हुआ है, ज़हनों को बंद किया हुआ है ताकि कलाम मुकद्दस को ना समझें। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर या इस पैसेज के अंदर हम देखते हैं कि हालात कैसे भी आ जाएं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालात ना कंप्रोमाइज नहीं करना, पावे कुछ भी हो जाए, नहीं झुकना हालात आगे। कोशिश करो यह गल तुहाडे अंदर ना कुट कुट के भरी जावे। हालात खिलाफ होण, तूफान तुहाडे खिलाफ होण, लोग तुहाडे खिलाफ होण, नहीं कंप्रोमाइज करना, तो डट जाना है। ए जदों तुहाडे अंदर पैशन होएगा ना, ते भरोसा किहदे ते करना है? जिंदा यहोवा खुदा, ते खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है। और ईमानदार अकेला भी खड़ा हो तो वो लश्कर ही होता है, क्योंकि लश्करों का खुदा उसके साथ खड़ा होता है। नाखिस इस गरूर, पहले भी ये गरूर में ही मारा गया था, आसमान पर भी खुदा ने पटक के सुटिया जमीन थले। अब हुआ क्या? ये गरूर के अंदर है, घमंड के अंदर है, और उस घमंड के अंदर लोगों को कहता है अपने कासत भेज दे। अब खुदा हमारी आजमाइशों में से निकलने की राह पैदा करता है, कहता है कासत भेज दो। ये जाते हैं, साउल अपने बैलों के पीछे चल रहा है। साउल क्या करता है? खुदा ने उसकी मशहूरी का एक स्टेज तैयार कर दिया है। अब खुदा ने एक स्टेज तैयार कर दिया है कि अब मौका है कि याबीस जलाद के लोग फंस गए हैं, अमूनी नाखिस हमला करने वाला है, और अब खुदा उस स्टेज पर आकर इसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा कि लोग मानेंगे कि साउल बादशाह है। खुदा स्टेज तैयार करता है। असी अपनी मशहूरी दे जिन्ने मर्जी फिल्टर ला लिए, जो मर्जी कर लिए, असी बाइबल कहती है गुमनामों की मानिंद है तो भी मशहूर हैं। इब्लीस गरूर के अंदर फंसा हुआ है, कहना दी मदद लिए किन्ने आना है? इस्राएल की मदद के लिए तो खुदा खुद आ गया है जमीन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर आ जाता है, कभी आग की भट्टी में आ जाता है, कभी आग का सतून, कभी बादल का सतून बन जाता है। इस्राएल के लिए जमीन पर आने के लिए उसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। खुदा बेसिकली अब साउल को उस स्टेज पर यूज करने लगा है जहां पर साउल की एडवर्टाइजमेंट होगी और साउल की आजमाइश होगी। हुआ क्या? अच्छा, यहूदी लोग ना है तो इंटेलिजेंट ने, इन्ना आके ना अमूनी ने पूछा नाखिस ने की ताड़ी सलाह हुई है? उन्हें क्या कोई गलबात नहीं हुई, सानू थोड़ा जा टाइम दे, जे असी ना शाम तक आए तो असी कल दोपहर तेरे को निकल आवांगे, साडियां अखां भी कढ ला, असी अपने आप तेरे काबू कर दांगे। इन्ना ना अंदर हाथे काम ते बना लिया सी अपना, ते दसिया को नहीं इबलीस नू, नाखिस नू। चले गए। साउल ने क्या किया? साउल ने लोगों को जमा किया, साउल ने लोगों को इकट्ठा किया, और कलाम कहता है साउल ने
अमूनियों को मारना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया। और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां दो अमूनी इकट्ठे खड़े भी मिले। ये फतह से बढ़कर गलबा पा गए। खुदा ने मदद फराहम कर दी। और इसने किया क्या? होना तो यह चाहिए था कि आई एम समथिंग एंड आई एम किंग, कहना चाहिए मैं किंग हूं, मैंने बचाया है। लेकिन ये इकरार करता है कि ये जंग मैंने नहीं बल्कि खुदावंद ने आपको फतह दिलाई है। क्या इकरार कर रहे हैं? और लोग 12वीं आयत से, और लोग शमूएल से कहने लगे किसने ये कहा था कि क्या शाऊल हम पर हुकूमत करेगा? उन आदमियों को लाओ। ये अपना इब्लीस ने एक नया चक्कर शुरू कर दिया, मुखालफत लोगों के अंदर पैदा करना शुरू कर दी कि हुण तुसी यूज होना है, हम उनको कत्ल करें। शाऊल ने कहा आज के दिन हरगिज कोई नहीं मारा जाएगा। क्यों नहीं मारा जाएगा? इसलिए कि खुदावंद ने इस्राएल को आज के दिन रिहाई दी है, यानी मैंने नहीं रिहाई दी। उसके लिए जो स्टेज तैयार हुआ, उसके लिए जो मौका बना, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि अब तेरी एडवर्टाइजमेंट होगी कि इस्राएल का बादशाह शाऊल है, खुदा ने उसके लिए मौका फराहम किया और इसने वो मौका अवेल किया। और जलाल किसको दिया? जलाल खुदा को दे रहा है। हम जलाल किसे देते हैं? अपने आप को। असी जलाल अपने आप ਨੂੰ देने ਆ। स्टेज ਤੇ गवाही देनी है ना तो मेरा ना लाजमी लेना है, समझिया करना, लोगों में तेरा पता लग जाएगा। साडी दी आदत है, हम जलाल अपने आप को देना चाहते हैं। शाऊल जीता है, अमूनियों को मार डाला है, कत्ल कर रहा है, फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया है। और अब तो मौका उसका ये था कि वो लोगों को बताता कि मैं पावरफुल हूं और मैं ही बादशाह हूं। ये जिंदगी के इब्तदाई सालों में इसने ये किया था। गरूर को, घमंड को इसने पीछे किया और खुदा को जलाल दिया। तीन चीजें शाऊल की जिंदगी के अंदर, ये बैरूनी जंग भी जीत गया यानी तलवार वाली, ये अंदरूनी जंग भी जीत गया और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ की जंग भी जीत गया। अदम तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं जिदे ते बंदा अपने आप ਨੂੰ फील करता है कि मैंने ਇਹਦੇ ਤੇ मुहाफ़ज़त नहीं आ, प्रोटेक्शन नहीं है। लोगों की प्रोटेक्शन इसे नहीं थी। ये वो भी जंग जीत गया। लोगों ने बाद में इकट्ठे होकर कहा कि शाऊल ही इस्राएल का बादशाह है। ये तीनों जंगें जीत गया। अब यही तीन बातें, बैरूनी जंग, अंदरूनी जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ की जंग, यही तीन चीजें इसे बाद में ले डूबी थी। गरूर क्या आ गया था कि मैं बादशाह वां। दारा नूं किदा पिया सी, मेरे बाद दाऊद बादशाह बन, मैं की नोट दे रहा हूं, मेरे बाद दाऊद बादशाह बन जाएगा। अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी अपने आप को प्रोटेक्ट फील नहीं कर रहा। तीसरी बात, अंदरूनी जंग भी, खुदा इसे कह रहा है कि तू जाना, मारना मालिकियों को, वहां से जाके तूने कोई चीज छोड़नी नहीं है, सब कुछ नेस्तो नाबूद करके आना है। देखने में अमल अच्छा लग रहा है कि शाऊल अच्छा कर रहा है कि मोटी मोटी ताजी ताजी बकरे और मेंढे जो हैं उन्हें बचा रहा है, लेकिन खुदा के हुक्म की हुक्मदुली कर रहा है। यही कई दफा हम अपनी खिदमत के इब्तदाई सालों में बड़े जोशो खरोश के साथ होते हैं और साथ ही हम उसमें कमजोर पड़ना शुरू। बपतिस्मा ले लिया, रोल कुसना मामूर हो गए हो, चर्च आने लग पे हो, असी इत्थे तक ही महदूद। शाऊल को जिंदगी के पहले साल तो खूबसूरत नजर आए, लेकिन बाद में जब मुश्किलात आई और जंगें आई, हालात बिगड़े, इसलिए हमने अपने आप को कभी सरेंडर नहीं करना इब्लीस के हाथों। और लूका की अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि शैतान ने पतरस, शमौन तुझे मुझसे मांग लिया है ताकि वो तुझे गेहूं की तरह पटके। खुदावंद यसू ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। कितनी वड्डियां गल्लां हो रही सन लूका दी अंजील दे विच, खुदावंद यसू दियां ते शमौन पतरस दियां। शमौन पतरस जज्बाती होकर डायलॉग मार देता है, कहता है खुदावंद कैद होना तो बड़ी दूर की गल है, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। खुदावंद यसू अलर्ट कर रहा है कि शमौन
मुझसे इब्लीस ने तुझे मांगा है तेरा ईमान न जाता रहे, कायम रहना। अगर तू कायम ना रहा तो तुझे गेहूं की तरह पटकेगा। खुदावंद यसू अलर्ट करदा सानू। 22वां बाब है आई थिंक, हाँ, उसकी 31वीं आयत लिखा है, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। और अकेले शमाउन को नहीं बल्कि तुम का मतलब है यहां पर सबको, शागिर्दों को मांग लिया गेहूं की तरह फटके। गेहूं को फटका समझने हो? गंदम जेड़ी वो करदे ने, गंदम नू पत्थर ते मारदे ने, फिर वो दाने विचों बाहर ने। खुदावंद यसू अलर्ट कर रहा है कि ध्यान नाल, खौफ नहीं खाना, डरना नहीं। मैंने ते हले दुआ खुदावंद यसू नासरी कर रहे हैं, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। खुदावंद अलर्ट कर रहा है। ये तो खुद फिर मजबूत नहीं रहा। आगे पढ़े। उसने उससे कहा, है खुदावंद, ऐ जज्बाती लोकां दा हाल, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कि मुझे नहीं जानता। खुदावंद यसू अलर्ट कर दे, हमें भी अलर्ट कर देता है कि बंदे बन जाओ, ठीक हो जाओ। अगर असी ठीक ना आए तो इब्लीस गेहूं की तरह चुक चुक के मारेगा थले। फिर असी यह दावा करिए कि यसू साडे नाल है, जरूर नाल हुंदा है। कई दफा खुदावंद चेक भी कर लेंदा कि किन्ने क मजबूत ने। खुदावंद कह रहा है, जब तू रजू करे ना कल्ला, जब तू रजू कर ले तो उसके बाद क्या करना, भाइयों को क्या करना। और लिखा है सैमुअल की किताब में कि सैमुअल का गुस्सा भड़का। तो इसकी जरा थोड़ी सी तशरीह सुन लीजिए। ये बेसिकली गुस्सा, इसको जो तर्जमा किया गया होली एंगर, होली एंगर यानी कि पॉजिटिव वे में पाक तरीन लिहाज से गुस्सा करना किसी के लिए, कि मेरी कौम, मेरे लोग, मेरी कौम के ऊपर हमला, मेरे ही लोगों के ऊपर हमला। ये पॉजिटिव वे के अंदर है कि उसका गुस्सा भड़का। ये पॉजिटिव वे में बात हो रही है कि उसका गुस्सा भड़का। उन्होंने इस बात का ख्याल ना किया और सैमुअल ने सब लोगों को बाद में इकट्ठा करके ऐलान कर देता कि यही बादशाह है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन की। इब्लीस कभी भी साडे ते हाथ होला नहीं करता। इब्लीस दा हाथ होला नहीं जे, वो अपना हाथ टाइट रखता है। असी इब्लीस ते हाथ होला कर देने आ। कलाम कहते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करो, तो मुकाबला माड़े हथा ना हो सकता है। एनर्जी पावर होगी तो फिर ही हम लड़ेंगे ना। तो ये जंग तो रूहानी है। इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे, वरना इब्लीस मैं आपको बताऊं कि वो घात लगाकर बैठा हुआ है कि कब किसको चीर फाड़ खाए। लगे आज कोशिश में असी अपने आप ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ हिरनी क्या कर दी है या हरन की कर दी है। ਜਦੋਂ ਚੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਘਾਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਨ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ कि किथे वीक मूव करे, कहां से ये वीक हो और मैं उस पर हमला आवर हो जाऊं और फिर वो हरन को पकड़ लेता है। इसी तरह इब्लीस हमें देखता है ये ईमानदार केड़े पॉइंट च कमजोर हो रहा है, इनू उत्थे फड़ो, इनू दबोचो और इनू नेस्त करो, बल्कि हमें मजबूत होना है। इसी तरह यसू नासरी भी इन सारे हमलों में, दुनिया के अंदर इब्लीस ने बड़े हमले किए, लेकिन हर एक को वो कंट्रोल कर लेता है या हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन वाहिद यसू मसीह है जिस पर हर तरह का हमला किया गया, यहां तक कि सलीब पर भी, उसके मरने पर भी, जी उठने पर भी, लेकिन यसू हमेशा के लिए फाते रहा। इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि हम यसू के पैरोकार हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू मोर एंड